میں یہی خوبصورتی ہے کہ کیا بات نہیں کرنی. بشرا بی بی کے سٹیٹمنٹ کو لے کر رات بھر سے وویلا ہے اور اچھا خاصا بونچال ہے جو سعودیہ سے متعلق انہوں نے بیان اپنا دیا. اور وہ بیان جو ہے اس کو آپ یہ اسے اس طرح ہم بات کر لیتے ہیں بیسیکلی کہ جو پولیٹیشن ہوتا ہے اس کی ساری عمر گزر جاتی ہے اس ٹریننگ میں کہ کیا بات نہیں کرنی. اور پولیٹیشن بالکل صحیح کہا جی. پولیٹیشین جو ہے جو ایم اے پولیٹیکل سائنس جو کرتے ہیں, میں نے تو نہیں کیا لیکن میرے گھر والوں نے کیا ہوا, اس میں بھی یہی ہوتا ہے پولیٹیشین کی ٹریننگ کرتے کرتے کم از کم 25 سال چاہیے اس کو یہ سمجھنے کے لیے کون سی بات نہیں کرنی. آپ نے دیکھا مودی کم بولتا ہے, اس کو یہی ٹریننگ دی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان, نیوز فیوز فرام سوشل میڈیا. یہ تھے فواد حسن فواد. یہ پہلے نیوٹرل تھا بڑا, بس اٹھا کے لے گئے اپنے گھر, تو پھر وہاں سے آئے تو سروس ہو گئی جس کو عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ ٹیوننگ ہو گئی. انہوں نے وہ کر دی تھی, پھر اب یہ بگڑ گئے ہیں. اچھا جی, ایک اور آپ کو سنا دیتے ہیں خبریں ان کی متن ہمارے. یہ میں نے پہلے ہمارا اس کے اوپر اسپیشل کلپ تھا. یہ کوئی وہ ماسکو کی جگہ نہیں جس پہ یوکرائن نے میزائل داغے ہیں اوپر نیچے, وہ بھی اس سے کم ہے. نہ جانے کون سا وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اسلحہ اور کون سا بارود استعمال ہو رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں یوکرائن اٹیک آن ماسکو, یہ ابھی 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, جو میزائلوں نے جا کے وہاں جو تباہی کی ہے اس کے بھی آ کے شعلے ایسے نہیں تھے. یہ ہم نے اس کا فیوز نکالنا تھا, یہ بھی ذرا سن لیجئے. احتجاج کا ہے تو کیا بشرا بی بی اس ملک کی فارن منسٹر ہیں جو بیٹھ کر فارن پالیسی کو ڈسکرائب کریں گی؟ تھوڑا سا آپ کا وقت چاہوں گا. جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ میرے بنیادی سوالات ہیں. بشرا بی بی کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا, کس حد تک درست تھا, کس حد تک درست نہیں تھا. میں یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ختم ہو جائے گا تو میں اس پر بات کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے نقصانات کتنے ہوئے, اس کے فوائد کتنے ہوئے. ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے, ہم بلینک ہیں کہ یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی تھی, عمران خان اس پہ آن بورڈ تھے یا نہیں تھے, یا یہ بشرا بی بی کی جانب سے ایک بلنڈر تھا, یہ غیر ضروری تھا. اس وقت وہ بات کی باتیں ہیں. سوال میرے یہاں پر یہ ہیں کہ کیا بشرا بی بی کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جنہوں نے 24 نومبر کو باہر نکلنا تھا وہ اب باہر نہیں نکلیں گے؟ سوال یہ ہے کیا بشرا بی بی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد جو سعودی عرب ہے وہ بہت بڑی کوششیں کر رہا تھا مذاکرات کو, عمران خان باہر آنے والے تھے, اور بشرا بی بی کے اب اس اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں آئیں گے, ان دونوں باتوں کا جواب نفی میں ہے. اس بات کو آپ بھی تسلیم کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دن ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے اور ہمارے جو صحافی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ فطری ان دونوں باتوں کا جو ہے نا وہ ماخذ یہی ہے کہ یہ بچے وسیم ملک یہ اتفاق سے حق سچ کی بات کرتا ہے, قاضی فائز اس کا, اور یہ جو بچی ساتھ بیٹھی مریم نواز خان ان کے بڑا خلاف تھا, ان کو ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ یہ حق سچ کی بات کرتے تھے. اچھا جی, پھر ایک اور آگے بات کر لیتے ہیں. باقی میں ہوں اس وقت اسلام آباد کے سیکٹر E11 اور مارگلہ روڈ پہ. تو ویسے اسلام آباد پولیس کو, اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کے اور اسلام آباد کی جو ٹریفک پولیس ہے اس کو داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے جو E11 سیکٹر ہے وہ بند کر دیا دھرنے کے پیش نظر. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو سامنے نیا ایران روڈ بنا ہے اس پہ کنٹینر لگے. پروفیسر طاہر ملک صاحب تھے, یہ بڑے اچھے ہیں, اسلام آباد کے پاپولر ہیں, پولیٹکس میں حصہ نہیں لیتے. یہ ان کی آواز تھی جو انہوں نے صرف ڈی چوک بند کرنا تھا, انہوں نے محسن نقوی شرابی کبابی نے پورا ملک ہی بند کر دیا ہے. واہ جی واہ. السلام علیکم میرے پاکستان کے نوجوانوں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاسبان اس کے. نہ میں, نہ کوئی لیڈرشپ, نہ ہی کوئی اور تنظیم. آپ آزاد پیدا ہوئے تھے, آزادی آپ کا حق ہے. محترمہ نے بیان تو دے دیا, اس کو پتہ لگ گیا تھا, چٹیز کہہ رہی تھی اب میں اٹھائی گئی, یہ گھر سے نکل گئی. وہ پولیس والے اس کے گھر گئے اور پان توڑ کر کے آ گئے, 1 لاکھ 2 لاکھ کا نقصان کر کے آ گئے ہیں. اچھا جی, نصرت جوید نے جو کیا ہے نا, آج کل میرے خیال فاوا نہیں جا رہا, اس کو بھی ٹوکری مریم نے بھجوانی تھی نا. جسٹ ویئر دیٹ had hat of father who believe mother you have booked a hall on express way. اس کا فیوز نکالنا ہے.
of Islamabad to marry of your daughter. Many weeks ago, the date was fixed on 23 November 2024, and you made arrangement for around 400 guests, money paid in advance, and now you are told all entry of exit route of Marquee you had booked would be blocked at 12 बजे, रात 12 बजे। अच्छा जी, नहीं बात दिन के 12 बजे बंद कर दिया, फ्राइडे नाइट, रात के फ्राइडे नाइट के। आई बेग यू टू इमेजिनेस द पेन पेरेंट्स मस्ट बी डीलिंग विद। ये नुसरत जुवैद साहब ने दिया, ये समझ लो नुसरत जुवैद की जगह से ना वहाँ पे मरवत लिख दो, जिसकी बेटी की शादी फैसल नसीर DGCI काउंटर उसके फैसल नसीर के बेटे के साथ थे। तो ये हंस मैं इस वजह से रहा हूँ कि नुसरत जुवैद के बजाय आप यहाँ पे मरवत कर दें। साबका सेक्टर कमांडर कराची ISI अभी भी काम करता है मेरे का पर यूनिट। यार हो क्या रहा है उस मुल्क में, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये जिनको निकालने आए हैं ये पाकिस्तान के मेहमान हैं। इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट लाई थी। जब तालिबान वापस आए अपनी हुकूमत में तो जो लोग वहां से निकले उनको पाकिस्तान, उस वक्त हमें कहा गया जी होटल खाली करवाएं, इनको रखना है, ये मेहमान है हमारे। आज उन मेहमानों को पुलिस निकालने के लिए आ गई है कि आप सड़क पे आ जाएं। और भाई जब आप खुद लोग ये होटल ऑनर एसोसिएशन के सदर हैं, ये इशारा करने के तालिबान को हमीद गुल वगैरह, उसके बाद भी कितने हमीद गुल आए ने, हाँ जी उसके बाद भी कितने हमीद गुल आए, उन्होंने भी यही कहा था ये हमारे मेहमान की इज्जत से रखो। अब धक्के मार मार के जिसका शनाख्ती कार्ड देखते हैं अफगानिस्तान का, उसको चल सो चल, होटल खाली, हॉस्टल खाली। साला का कल के लिए रुकावटें बना रहे जानबूझकर। अड्डे बंद कर दिए गए हैं, जो सवारियां लादी थी कंडक्टर पैसे लेके उसने भागना ही था। ये अपना रो रहे हैं कि हमारे पैसे भी नहीं वापस कर रहे और हमें उतार भी दिया, अड्डे पे नहीं, तो अड्डे से थोड़ा सा दूर जाकर। तो बस मुल्क में तो पता लग रहा है ना धरना हो रहा है। बुशरा बीबी ने नफरत अंगेज़ बयान दिया, डेरा गाजी खां में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा। मुगीस अली उसमें भी हो गया, क्या कौन सा था, एक रहीमियार खान था, एक और था, एक DG खान था, एक और लागे पसमानदा इलाका, वहाँ पे भी हो गया है, 2 पर्चे हो गए ने। चंगा है अपना पता तो लगे। जो बुशरा बीबी ने बयान दिया है सऊदी अरब के हवाले से वो बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है और वो एक तरह से एक खुदकुश हमला था। वो खुदकुश हमला था पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात के हवाले से, वो खुदकुश हमला था PTI की सियासत के हवाले से, क्योंकि ये ऐसा बयान है कि जिसको PTI भी डिफेंड नहीं कर सकती और उनके लीडरों को समझ नहीं आ रही कि वो माजरतें किस तरह करेंगे। बगारत रामी पिले, तेरी वजह से तेरे बाप से भी मैं नफरत करना शुरू हो गया। वो मज़ाहिया नहीं है डॉक्टर अनवर मकसूद के कौन गुजरात वाला, ये उसका हरामी पिल्ला अमार मसूद। कहना ये था कि लिफाफा इसको पहुंच गया था, अब इसने सारे जने शुरू हुए ना, कोई बंदा नहीं बचा जिसने इसके ऊपर पौंका पांकी ना की हो। तो ये रह गया था, तो ये भी आ गया। इसने सबसे ज़्यादा तकरीर अपने बापू को कहेगा ना लिख दे, तो फिर पता नहीं किससे लिखवा के इरफान सिद्दीकी को कहेगा कि सर जी मैनवी को भेजो, मैं भी को करा, तो इसने किया। अच्छा जी, हमजा शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अफेयर यूनिट बराए वज़ीर आज़म तैनात कर दिया गया। वफाकी वज़ीर के बराबर झंडा मिल गया जी हमजा ने भी। प्यो पुत्र लुटमार करी जाओ। ऑफिस वज़ीर आज़म फर्स्ट फ्लोर पर होगा, चारों सूबों में भी दफातर होंगे। ये लफ्ज़ बड़ा होता है ख़तरनाक। फिर ये होगा जो पंजाब के दफ्तर में जाके बैठा रहेगा। हमजा कुकड़ी दी भी सुनी गई है जी, अब्बा जी ने तैनों बना ही लिया। अब क्योंकि IPP के ऊपर ज़रा सख्त दौर आने वाला, इन्हें क्या जी करे, उसका बस नहीं चला, सुलेमान शहबाज को भी किसी में कर दें। अच्छा जी, ये एक और दिखाना था आपको।
ये इन्होंने मुंह खुद ढांपे में है, ठीक है जी। और कोई लेडीज पुलिस साथ नहीं है, ठीक है जी। अच्छा हुआ नहीं हुई जी। हथकड़ियों के बगैर आ रही, जिन्होंने अपनी बहू के, जो सकी भांजी भी थी, अपनी बहू के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, अपनी क्या उसको कहेंगे, भावज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, ये वो वाली हैं। तो देखो जी किस तरह जाबी कितने तरीके चलती जा रही हैं। आज दफ्तर सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी हुक्म बराए अड्डा बंदश, सेक्रेटरी इस्लामाबाद 19वें 20वें ग्रेड का होता है। इस्लामाबाद के कशीदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हुक्म दिया जाता है कि इस्लामाबाद के दूध जितने भी ट्रांसपोर्ट के अड्डे उनको आज मुर्गा 22/11/2024 बवक्त 8 बजे, टाइम बाद में लिखा, पूछ के लिखा ना, शाम बंद किए जाएंगे और अपने अड्डे के सामने कनात लगाकर अपने अड्डे को मुकम्मल तौर पर बंद रखा है और अड्डे के सामने कनात लगाएं। हुक्म हाजा पर सख्ती से अमल करें। अमल ना करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। या आटा का पर्चा कटाया जाएगा दहशत गर्दी का, कि तू तंबू नहीं लगाया, चलो दहशत गर्दी होने का डर था तो तेरे पे भी वो कर दिया गया, पर्चा काट दिया गया। अच्छा जी, मुरम्मत बराए कौम सफदर समझा हुआ, मोटरवे बंद कर दी गई बराए मरम्मत। मोरका 22 रात 8 बजे बस सिलसिला मेंटेनेंस मोटरवे पुलिस का, ये उसके लोगों के साथ है, लोगों के साथ। पेशावर था इस्लामाबाद M1 बंद, लाहौर था इस्लामाबाद M2 बंद, लाहौर था अब्दुल हकीम M3 बंद, अब्दुल हकीम मेरे मुल्तान की तरफ है। अच्छा, पिंडी पट्टियाँ था मुल्तान M4 बंद, सियालकोट था लाहौर M11 बंद, पार्क था हकला M14 बंद। ये सारे उन्होंने जो हाईवे के अंडर आते थे ये बंद है। यहाँ पे ये करना है, ये जो ठेका लेती थे NLC, ये अपना लेके तो आगे भेज देती है ठेका। हाँ जी, वो पर्चियों का ठेका। अच्छा जी, वो ठेकेदार बाँ कर रहा है, वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक और सुन लीजिए, बांग्लादेश ने फौज को ख़त्म करके एक नया अदारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से बना दिया। इंडिया भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, जिसका काम सिर्फ सरहदों की हिफाजत होगा। फौज के तमाम कारोबार व असासों को सरकारी तहवील में ले लिया गया। ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के तमाम रैंक ख़त्म कर दिए गए। सरकारी इदारों में रिटायर व हाजिर सर्विस फौजियों की तैनाती पर पाबंदी लगा दी। रिटायर फौजियों की सियासत और सियासी पार्टियों में शमूलियत पर पाबंदी। फौजी अफसरान के बैरून मुल्क मुलाजमत व रहायश का बंदोबस्त भी ख़त्म। क्या जी, ब्रिगेडियर को 35 पेंशन वाले को दी थी टिकट, चलो भुगतना भी, वो सऊदी अरब भाग गया। अच्छा जी, एक और है, बिलाल चौधरी साहब ने ये रिपोर्ट की है। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर की शदीद कमी बरकरार। सूबे के 12 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 940 वेंटिलेटर, जिनमें से 300 से ज़्यादा गैर फाल हैं। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 520 वेंटिलेटर में से 170 फाल हैं। 1.5 लाख अफराद के लिए सिर्फ 1 वेंटिलेटर बनता है। पंजाब में एनेस्थीसिया डॉक्टर और टेक्नीशियन की भी शदीद किल्लत है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में वेंटिलेटर मौजूद, मगर चलाने वाला कोई नहीं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अस्पताल में बेड्स के हिसाब से 15% वेंटिलेटर होने चाहिए मौजूद। 15% जितने बेड का अस्पताल 15%, 200 बेड का तो 30 होने चाहिए। अच्छा जी, फिर क्या है जी, मियां अस्पताल 2700 बेड के लिए सिर्फ 90, जिना अस्पताल 1400 बेड के लिए 80, सरस अस्पताल के 1500 बेड के लिए 75, गंगाराम अस्पताल 30, जनरल अस्पताल 55, चिल्ड्रन अस्पताल 105 वेंटिलेटर। कोरोना के दौरान खरीदे गए और डोनेशन के वेंटिलेटर पड़े ख़राब हो गए हैं। बेशतर वेंटिलेटर अस्पतालों से चोरी होने का भी इंकशाफ है, जबकि अक्सर नाजुक हालत मरीज़ों को सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर मिलता नहीं। इसके इंतज़ार में
ही लोग दम तोड़ जाते हैं। निजी अस्पताल में वेंटिलेटर का एक दिन का खर्चा 30,000 रुपया है। जो वेंटिलेटर चोरी हुए किसी प्राइवेट क्लिनिक में ही गए हैं ना, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। सऊदी अरब में भी, अच्छे मुल्कों में भी, दुबई में भी, कि चोरी हो जाए और फिर जाके किसी प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर ये लग जाए। इसको मेरे ख्याल यहीं पे क्लोज कर लेते हैं। एक और आपको आइडिया सुनानी थी, वो किसी ने दिया था, मेरा मैसेज ज़रूर सुनाइएगा। चलो जी, अल्लाह करे लब गया तो सुना देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है? खैरियत है भाईजान? अल्लाह आपको अपने ज़बान में रखे। मैं अपने भाई की हिम्मत समझता हूँ, कितना ये नॉलेज हो, क्या रखते हैं आप हर मामले में, बैंकों हो, करप्शन हो, सियासत हो, वकालत हो, सब में मेरा भाईजान। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह ज़ुबान में। आमीन सुम्मा आमीन। वकालत शिकालत अहमी जे बस। पाकिस्तान जिंदाबाद।